प्रोवर्ब्स 29, 30, 31 वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 29 किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट एंड ऑफ प्राइवेट, फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. Oh my God. The king by judgment establisheth the land, but he that receiveth gifts overthroweth it. A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous doth sing and rejoice. The righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regarded not to know it. Scornful men bring a city into a snare, but wise men turn away wrath. If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. The bloodthirsty hate the upright, but the just seek his soul. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in till afterwards. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. The poor and the deceitful man meet together, the Lord lighteneth both their eyes. The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established forever. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. When the wicked are multiplied, transgression increaseth, but the righteous shall see their fall. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. A servant will not be corrected by words, for though he understand, he will not answer. Seest thou a man that is hasty in his words? There is more hope of a fool than of him. He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length. An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Whoso is partner with a thief hateth his own soul. He heareth cursing and beareth it not. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Many seek the ruler's favor, but every man's judgment cometh from the Lord. An unjust man is an abomination to the just, and he that is upright in the way is abomination to the wicked. Chapter 30. The confession and instructions of Agur. First verse से पढ़ेंगे. The words of Agur, the son of Jakeh, even the prophesy. The man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ukal, surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy, who hath ascended up into heaven, or descended, who hath gathered the wind in his fists,
who hath bound the waters in a garment, who hath established all the ends of the earth. What is his name? What is his son's name, if thou canst tell? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto this, unto his words, lest he reprove thee and thou be found a liar. Two things have I required of thee. Deny me them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee, and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal, and take the name of my God in vain. Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee and thou be found guilty. There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. There is a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth and the needy from among men. The whorous leech hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied. Yea, four things say not, It is enough. The grave and the barren womb, the earth that is not filled with water, and the fire that saith not, It is enough. The eye that mocketh at his father and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not: the way of an eagle in the air, the way of a serpent upon a rock, the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid. Such is the way of an adulterous woman. She eateth and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness. For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear: for a servant when he reigneth, and a fool when he is filled with meat; for an odious woman when she is married, and an handmaid that is heir to her mistress. There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks. The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands. The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces. There be three things which go well, yea, four are comely in going: a lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any; a greyhound, as he goat also; and a king against whom there is no rising up. If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth. Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood. So the forcing of wrath bringeth forth strife. Hallelujah. ये बहुत ज़रूरी है. देखिए, forcing of wrath,
गुस्से को ज़बरदस्ती भेजा जाता है, ओके, ताकि झगड़े हो जाए। ये आगे बढ़कर फिर झगड़े में तैयारी हो जाता है। घर में फूट आने का ये एक रास्ता दुष्ट जगत से किया जाता है। ज़बरदस्ती क्रोध को भेजा जाता है। वही क्रोध आगे बढ़कर फिर झगड़े में बदल जाता है। चैप्टर 31 Lemuel's lesson for chastity and temperance, praise and properties of a good wife। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him, what, my son, and what, the son of my womb, and what, the son of my wombs? Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband doeth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen, and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Hallelujah. ये बहुत प्यारा शब्द है। इन हर टंग इज द लॉ, ये काइंडनेस का एक लॉ है, ओके। इन हर टंग इज द लॉ ऑफ काइंडनेस। वो जब भी बातें करती है, उसके बातों में, उसके शब्दों में, उसके बातों के उद्देश्य के पीछे सिर्फ दया, करुणा, भलाई के नियम होते हैं। केवल उसी के कारण वो वैसे शब्दों को, मतलब वैसे इच्छाओं को बोलकर दिखाते हैं। वंडरफुल, बहुत प्यारा है ये। She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Beautiful, beautiful, very beautiful. 27 verse. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.
Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. नीति वचन पढ़ेंगे 29 अध्याय, 30 अध्याय, 31 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 29 अध्याय पहले वचन से, जो बार बार डांट जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। डेंजरस जोन है। ओके, कभी भी कोई अच्छी बात कह रहा है और डांट रहा है कि ऐसे नहीं करना है, तो हठीले नहीं बनना है। और फिर हठीले होना है तो आपको ये अंत भी पता चलना चाहिए कि आप फिर बाद में चाहे जो उपाय करने की कोशिशें करें, उपाय होंगे नहीं, नाश हो जाएंगे। ओके, ये वचन है, वचन के अनुसार ही आपको अंत आएगा। इसके लिए जब कोई अच्छी बात आपको बोल रहा है ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना है, तो हठ नहीं करना है ताकि तुम बचाए जाओ। ओके, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है वह प्रीति रखता है, अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। ओह माय गॉड। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। हालेलुया। नौ वचन से आगे पढ़ेंगे। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। देखो, बुद्धिमान के विषय में ये बहुत जानकारी भारी तरीके से है। ओके, हमने ध्यान रखना है। बुद्धिमान के विषय में भारी तरीके से ये अध्याय बताता है। जब हकीम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। निर्धन और अंधेर दोनों एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हालेलुया। परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया।
दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। हालेलुया। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हकीम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने से घृणा करता है। अगुर के वचन 30 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। याके के पुत्र अगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतियल और उक्काल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है, और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अन्य नीति वचन 7 वचन से आगे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है, और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनके दाढ़े छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। ओह गॉड। 15 वचन से आगे पढ़ेंगे। जैसे जोंक की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने,
उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। डेंजर जोन। लेकिन अगर माता पिता वचनों के खिलाफ है, वचन मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो, कलीसिया में सहभागिता मत लो, ऐसे अगर परमेश्वर के योजनाओं के विरोध है तो आपको उनका अनाज्ञाकारी करना ज़रूरी है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको छूट देते हैं और फिर आप उनका अनादर करते, अनाज्ञाकारिता में चलते, तो अच्छी बात नहीं है। 18 वचन से आगे पढ़ेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। ओहो। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिज्जू बलि जाती नहीं, बिज्जू बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सबके सब दल बांध बांध कर चलती है और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तू अपने बड़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। राजा को सलाह। 31 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। हे लमूएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। आदर्श पत्नी। पहले 10 वचन से आगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है
वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसको प्रशंसा होगी, उसकी प्रशंसा होगी। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 22 चैप्टर 24 वर्स से 34 वर्स तक। 1 सैमुअल 30 चैप्टर, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 24 वचन से 34 वचन तक। पहले शमूएल की पत्री 30 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले के समय में पढ़ना है। जब पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में हम इन वचनों को पढ़ रहे होंगे, हमारे ज्ञान में परमेश्वर का आत्मा भरपूरी देगा और वही ज्ञान हमको बुद्धि और समझ के साथ इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हमको पहले वो वचनों से भरता है और फिर हमको ज्ञानी बनने के बाद में बुद्धि और समझ के संगति में ज्ञान का इस्तेमाल कराता है। ओके, तो अगर हम वचनों को पहले अपने अंदर भर लेंगे तो पवित्र आत्मा उन वचनों का ज्ञान बुद्धि और समझ में लेकर आएगा और फिर हमको उस रास्ते से हमारे जीवन के प्रभाव, हमारे जीवन के अच्छे असर हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये होने के लिए हमको परमेश्वर ने ऐसा ज़बरदस्ती नहीं किया है कि हम बस उठना है और वचन पढ़ना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हम में मौजूद है और वो अनुग्रह का आत्मा है। वो हमारी सहायता करने के लिए है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर से वो आनंद देता है, हर्षित करता है, समय लगाता है परमेश्वर के वचन को समझ लेने के लिए, बुद्धि में भर लेने के लिए, ज्ञान भंडार में हमारे अंदर भर देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय वो हमको निकाल कर हमें वचनों के लिए तैयार करके रखता है। ओके, हमने उसके संगति में होने के बाद में कभी भी हमको वचन पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, ना ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से ये काम कर रहा है। यह अनुग्रह का आत्मा है। 2 साल के अंत में हम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा ने हमको कैसा भरपूर ज्ञान से भर दिया है। यही ज्ञान बुद्धि और समझ के साथ हमारा जीवन बढ़िया तरह से परमेश्वर के राज्य के कामों में इस्तेमाल में लाएगा।
ओके, ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है और निश्चित हमने इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा को हमने रखा है, वही पवित्र आत्मा है जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया। वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर तेरे वचन को भर रहा है। हम ज्ञान से भरपूर होते जा रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा फिट एंड फिक्स कर रहा है, ऑर्डरलीनेस में ला रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय और ज़्यादा परमेश्वर तेरे वचनों से और उन्नति करते हुए हम भरपूर होते हुए तैयारी के साथ रहेंगे। जो परमेश्वर तू चाहता है हम में से करना, उस मंजिल में हम दिखाई देंगे। हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हमारे अंदर तू अनुग्रह होकर आया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू। प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये सारी विनती प्रार्थनाओं को करते हैं, यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।